All right, so today we are going to start chapter number 9, that is internal and external communication. All right, so before we talk about what is internal and what is external communication, let's first have an idea about what is communication. So as you can see in the picture as well, for communication to take place, you require at least two persons. Why? Because one person will be sending message and the other person will be receiving that message. It means one person has to be a sender and the other person has to be a receiver to be called that activity as communication. So in simple words, we can say communication is a process in which a message is transferred or sent from the sender to the receiver. और हमने ये तो जान ही लिया है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है. So that is what we call communication. अच्छा, मैसेज भेजा गया और मैसेज अगले बंदे को मिल गया, दिस इज कम्युनिकेशन, राइट. अब इसमें कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में. अभी कुछ की तो मैंने बात की हुई है, जैसे सेंडर, रिसीवर, राइट. और उसके अलावा इसमें मैसेज आ जाता है. तो लेट मी टॉक अबाउट दैट फर्स्ट बिफोर वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स. It's yeah, this is now imagine that there is a factory where a factory manager is instructing a worker to do something, and for that the factory manager, a person who is wearing a coat and a pant, okay, so that person is also called, in communication, is called transmitter or sender, क्योंकि वो मैसेज भेज रहा है. अच्छा, तो हमें एक तो एलिमेंट है सेंडर, दूसरा मैसेज. अच्छा, अब मैसेज जा रहा है टू समवन who is called a receiver, तो एक और बंदा रिसीवर के तौर पे भी आता है. यस. अच्छा, लेकिन मैसेज को भेजने के लिए यू रिक्वायर अ मीडियम. रिमेंबर, जब आपने मैसेज भेजना है तो व्हाट यू रिक्वायर, बिकॉज मैसेज ऑटोमेटिकली तो नहीं जा सकता, फॉर दैट यू रिक्वायर अ मीडियम. अच्छा, अब दैट मीडियम कैन बी एयर, कि अगर आप वर्बली मैसेज भेज रहे हैं तो द अदर पर्सन इज एबल टू लिसन टू इट. अच्छा, आप इफ यू आर सेंडिंग अ लेटर तो वो भी भेजा जा सकता है, वो भी एक मीडियम है. कि आप बाय पोस्ट कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, या ईमेल, अब यहाँ पर इंटरनेट आ गया, एक प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है, वो एक मीडियम है, और उसके थ्रू यू आर एक्चुअली सेंडिंग मैसेज टू अनदर पर्सन, राइट. इसी तरह टेलीफोन है, अगेन दैट इज अ मीडियम एंड यू कैन सेंड मैसेजेस टू द इंटेंडेड पीपल. तो फॉर अ मैसेज टू बी सेंड, आपको यू रिक्वायर अ मीडियम एज वेल, एंड सिलेक्टिंग अ मीडियम इज इम्पोर्टेंट कि किस मैसेज के लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल करना है. समटाइम यू वांट टू सेंड द मैसेज अर्ली, समटाइम यू डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज दैट मैसेज टू समवन एल्स, you want it to be a secret and it will only be known by the information जो भी होगी मैसेज के अंदर, known by the person you are sending the message. अच्छा, उसके बाद when receiver gets the message, receiver understands it and then gives a feedback. Now, why feedback is required? Because it will give surety to the transmitter or the sender that the message has been well understood. Because message अगर receive कर लिया है तो we call it communication, but once the message was understood in the same way sender wanted, तो हम कहेंगे कि message was well understood और उसका feedback receiver sender को देगा. और feedback क्या होता है? Feedback is another message, but it is sent by
the receiver rather than the sender. उसे receiver भेजता है sender को to tell that I got your message, और वो तरीकेकार. अच्छा, feedback का तरीका एक तो ये है कि message send किया जा सकता है. Sometimes message is not required and actions can tell the sender that the message was well understood. जैसे मैं, let's say I am in the class and I am teaching, so I find out that there are two students who are talking, so I just tell them stop talking. अब मेरा मैसेज अगर उनको मिल गया है तो वो yes no sir नहीं कहेंगे, they'll simply stop talking. So by their action, because now they are not talking, I'll get to know that my message was well understood by them. और उसके अलावा इसमें feedback आपको in the form of message was not required, लेकिन at times feedback in the form of message was required. जैसे कि हम कहते हैं कि how many, अगर स्कूल में टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, how many students have attempted the question which was given as a homework successfully. So अब student, they are raising their hands, or they are saying yes sir I did it. So again this is the feedback given by the receiver, because here students are acting as receivers. So at time message की जरूरत नहीं होती और एक्शन से ही पता चल जाता है आपको. अच्छा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन which was, या ऐसा मैसेज which will be or which is received by the receiver in the manner intended by the sender, so we call it effective communication. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, if I tell somebody 2 + 2 = 4, so I ask a student, have you understood what I said? So student says yes sir I got it now. तो communication तो हो रही है, लेकिन when I ask him, okay what did you understand, तो student कहता है 2 + 2 = 5. अब यहाँ मैसेज पहुंचा भी रिसीवर को मिला भी, रिसीवर ने इंटरप्रेट भी किया, लेकिन रिसीवर फेल टू इंटरप्रेट इट और फेल टू अंडरस्टैंड इट इन द डिजायर्ड वे. जो सेंडर चाहता था उसने 2 + 2 5 समझ लिया. तो इसको फिर हम कहेंगे यस कम्युनिकेशन टुक प्लेस बट इट वाज नॉट इफेक्टिव. क्योंकि आपने याद रखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो वही होगी which will meet the purpose. मैंने आपको कल भी बताया था कि effective word जो है ना, there is a reason why we use it. Effective का मतलब है जिस किसी भी चीज के साथ लगाएं कि it must meet or serve the purpose. तो purpose आपका है कि worker जो है वो एक certain way में अपनी job को complete करे या एक certain action perform करे. तो अगर वो action perform करता है तभी हम कहेंगे कि communication was effective. Otherwise, if information is only received by the receiver, we'll only say कि communication जो है ना वो हो गई है, but it is effective or not, no idea. तो जो feedback होती है, ये it gives satisfaction to the sender कि yes my message was well understood. मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप सुन रही हो, मैसेज जा रहा है, but I have no idea whether you are getting that message or not in the manner I want. तो मैं आपसे पूछा हाँ सकीना इसका बताओ आंसर. तो जब आप आंसर देती हो, it means you are giving feedback और I'll be satisfied कि जी you are getting the understanding which I want from you. तो ये है आपकी effective communication. इसको हम effective communication में हम इनको elements of communication भी बोलते हैं. One is sender, right? The second is message. Third is medium, fourth is receiver, and fifth is feedback. Sometimes it is there and sometimes it is not required. But feedback always helps the sender that in a way that the sender can feel that the message was well understood. All right. I hope you got this concept, right? Yes. All right. Okay, so moving onwards. Now, one-way communication. Again, it's a concept. One way. What does it mean? One way, as you can see, that the message goes in one direction only. And normally, the example could be an instruction or an order given by the management or the manager to the subordinates. Now, if there is an instruction to the employees,
Now, employees are not supposed to give the feedback. They are supposed to follow those instructions. Like, for example, if manager says that you have to complete the orders by the day end. Now, this is an order, and this order does not require any clarification. Workers have to meet that, and by the day end, the orders must be complete. So this is one-way communication where feedback is not required. और ये normally orders ही होते हैं. जैसे आपको स्कूल में when date sheet is announced, it is given to the students in printed form. So do you have the opportunity to give feedback that no, it's too early, we can't prepare for the exams, और ये पेपर पहले क्यों है, ये बाद में क्यों नहीं है, why there are 2 papers in a day? So no clarification is required, and you have not been given the opportunity to give any sort of feedback. You just have to, क्या करना है आपको दिया ही नहीं गया मौका, तो फिर आप जो है ना, you can't do anything, you just have to follow that कि आपको डेट शीट के मुताबिक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. और ये नॉर्मली तब भी फायदेमंद होता है व्हेन यू फील दैट देयर विल बी lot of negative feedback. Now, what is negative feedback? Feedback is when the receiver wants to understand, and that's why receiver is asking questions. Negative feedback is that the receiver is not cooperating. Receiver is saying no, we can't do it. So if there is a negative feedback, so obviously the sender won't be able to send the message in the manner, और वो जो मैसेज है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, या इट विल टेक मोर टाइम. हाउ? लेट्स से कि अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बच्चे कह रहे सर समझ नहीं आ रही, सर ये मसला नहीं, सर ये आप तो ये कह रहे थे, हमने ये पढ़ा है. नाउ देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक. ना काउंटर आर्गुमेंट शुरू होंगे व्हेन स्टूडेंट्स आर इनटू काउंटर आर्गुमेंट कि सर आप जो कह रहे हैं हमें इसकी इंटेग्रिटी पे ट्रस्ट नहीं है, तो फिर तो बात लंबी हो जाएगी. टीचर विल टॉक more or will try to make them satisfied. तो वो फिर उस केस में जब आपको ये लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है या more time will be taken, तो आप फिर one way communication इस्तेमाल करते हैं. ऐसा मीडियम जिसमें सिर्फ जो मैसेज होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. It goes in one direction only to save time. ये मैसेज पहुंच गया, बस हमारा काम यही था पहुंचाना. अच्छा, अब जैसे कि मैनेजर कह रहा है टेक दीज ऑर्डर्स टू द कस्टमर. नाउ दैट्स इट. अब वो आगे से कोई फीडबैक नहीं देगी. जो आपकी फीमेल वर्कर है वो शी विल बी फॉलोइंग दोज ऑर्डर्स. अच्छा, फिर टेक दीज गुड्स टू द कस्टमर, और यहाँ पे मैसेजेस सेंड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. ये वन वे कम्युनिकेशन नजर आ रही है, एंड रिसीवर हैज नो चांस टू प्रोवाइड एनी फीडबैक. So that is why it is one way. Otherwise, अगर रिसीवर को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो फीडबैक दे, तो फिर वो टू वे कम्युनिकेशन बन जाती है. ये टू वे आ गई. साथ ही टेक दिस गुड्स टू द कस्टमर, सेम क्वेश्चन, एंड फीमेल वर्कर सेज और कंफर्म्स इट और डिस्कसेस इट. सर विच कस्टमर, कैन यू गिव मी द एड्रेस ऑफ द कस्टमर, वगैरह वगैरह. तो इसका मतलब है अब ये फीडबैक शुरू हो गई है, एंड दिस इज अ डिस्कशन. तो टू वे कम्युनिकेशन, डिस्कशन हमेशा टू वे होती है ना, आपको पता है. अच्छा, अब ये बात हमारी हो गई. तो ये मैसेज इज सेंट फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, और एंड रिसीवर आल्सो प्रोवाइड्स द फीडबैक एज वेल, या रिसीवर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गिव फीडबैक एज वेल. अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं वापस नोट्स की तरफ ही. या तो हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात मैंने आपसे की है, और एक चीज आपको बस यहाँ मुझे बतानी है, ये मैंने आगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी डिस्कस किए हुए. सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, वन वे टू वे कम्युनिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया है. आई विल बी इनटू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सून, बट बिफोर दैट आई नीड टू tell you about the importance of effective communication in business. जैसे for example, you are telling something to your brother or your sister or your mother or your father, and you felt later on that you miscommunicated to them. There was something wrong which you told to your family, brother, sister, mother, father. Okay, so you can tell them, okay, whatever I said earlier,
that there was some issue there. So I am giving you clarification. I am sending the message to you again, so you can talk to them again. So there was some miscommunication there, fine. But imagine that you are actually advising a customer to buy a certain product, and you miscommunicate there, let's say mistakenly, and on the basis of that information, customer buys that product, and later on customer gets an issue. Customer maybe injures himself because of that miscommunication. So imagine what kind of effect it will be on the business. The reputation will be at stake. The customer can claim for damages as well. Similarly, you advertise your products as well. So imagine you say something in your advertisement which was not true, or maybe something was miscommunicated. And after watching the advertisement, if customer buys your product and later on finds out that 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 certain features are not there in the product, let's say it's a car, and the car lacks certain features which were mentioned in the communication, or maybe some information was missing in the advertisement, and when the customer buys that product, he or she realizes that this is not a sort of product I should have been bought. तो वहां प्रॉब्लम आ गया, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, या मिसकम्युनिकेशन थी, या मिस्टेक थी. तो इमेजिन के the loss will be huge, na? That customer won't buy from you next time. The customer will tell other customers as well not to buy from that business, and will spread a very bad word of mouth. And apart from that, can claim damages as well, and can hurt the reputation of the business. तो effective communication बहुत important. अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी कि जो आप customer से communicate कर रहे हैं. So this is what we call external communication. Do remember, we call it external communication, and that is the name of that word is there in the name of the chapter as well. External क्यों बोल रहे हैं? Because when you convey something to somebody who is not part of your organization, when you send a message outside your organization, outside से मुराद ये नहीं है कि outside the building, मतलब you are sending a message to someone who is not part of the organization, जैसे कि customers हैं, ठीक है? जैसे कि आप बैंक से negotiate कर रहे हैं for a loan, जैसे कि government है, fine. These all are external communication. अच्छा, लेकिन communication is also important when you are involved in internal communication. And internal communication is when you are sending a message to someone who is part of your organization, let's say your co-workers, your manager, your subordinates. So let's say if you communicate something or you wrongly or you miscommunicated to your workers, and on that basis workers made a mistake. So obviously there will be a problem, na? Because now the product that would be produced, that won't be up to the mark. The service that would be provided to the customers, that won't be up to the mark. तो वो फिर mistake उनकी, अगर आपने miscommunication की है तो फिर गलती workers ने की होगी, और उससे फिर of course quality भी आपकी poor ही गई होगी. तो ये इसीलिए that is why it is very very important in a business कि communication जो है ना वो बहुत clear हो, and it should be effective, कि receiver को understand करना चाहिए whatever sender is trying to intend, और sender को भी cautious रहना है कि जो भी वो message भेज रहा है it must be crystal clear to the other party. अच्छा, अब तो ये मैंने आपको बता दिया. अब और उसकी वजह से आपको मैंने बताया bad image आ सकता है. Workers can be demotivated because workers won't be able to complete their job, or maybe if the product, let's say if a defective product was produced, तो फिर worker तो कहेगा जी यार ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई, तो मुझे तो सही बताया ही नहीं गया था. तो demotivation भी आ जाती है. Customers तो annoy होते ही होते हैं. तो cost बढ़ने के साथ साथ reputation भी at stake आ जाती है. अच्छा, फिर हमारे पास वन वे और टू वे कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बता दिया है. तो एडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें तो पहला एडवांटेज हमें नजर आ रहा है कि सूटेबल व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज एक्सपेक्टेड. ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा. एक फीडबैक होती है, एक नेगेटिव फीडबैक, जिसमें
ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज रिसीवर इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट वट एवर यू आर सेइंग। तो उसमें फिर वन वे बेहतर रहती है ताकि टाइम बचे, इसीलिए ना, टू सेव टाइम। अच्छा, फिर क्विकर टू कम्युनिकेट, जारी बात है। तो दोनों सूरतों में आप बहस नहीं करना चाह रहे वर्कर से तब भी वन वे, और आप टाइम बचाना चाह रहे हैं तब भी वन वे कम्युनिकेशन सूट कर रही है, कि आप नहीं चाह रहे कि टाइम जाया हो, बिकॉज उस वक्त पीक सीजन चल रहा है, लॉट्स ऑफ कस्टमर्स आर विजिटिंग योर शॉप और लॉट्स ऑफ कस्टमर्स आर रिक्वायरिंग योर प्रोडक्ट्स, तो फिर आप टाइम नहीं जाया कर सकते लंबी लंबी डिस्कशन में। अच्छा, फिर डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम आ जाए वन वे कम्युनिकेशन की, तो रिसीवर डज नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव फीडबैक which may cause a receiver to lose interest. Yes, कि अगर let's say कि a meeting is going on, a manager is telling workers something, but manager is not taking the questions of the workers, तो workers have some ambiguity, वो unclear हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन manager is not giving them chance to talk, तो of course क्या होगा कि workers will lose focus, they will lose the interest, क्या हमारी तो सुन नहीं रही हमारी प्रॉब्लम, तो हम क्या सुने, तो ऑफ कोर्स फिर उससे जो भी कम्युनिकेट होगा इट विल नॉट बी वेल रिसीव्ड बाय द वर्कर्स, और लेटर ऑन फिर मिस्टेक्स भी होंगी। अच्छा, इसी तरह रिसीवर में फील डिसरिगार्डेड एंड स्टार्ट फीलिंग दैट हिज सजेशन इज नॉट गिवन वैल्यू, कि आप अपना हैंड रेज करते हैं, सर आई हैव अ क्वेश्चन, तो मैनेजर आगे से कह दे प्लीज सिट डाउन, तो ऑफ कोर्स वर्कर्स विल फील दैट ना कि दे आर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, तो फिर ऑफ कोर्स वो फिर मोटिवेशन लेवल भी गिर जाएगा और उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, दैट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज वेल। अच्छा, इसी तरह अगर हम टू वे कम्युनिकेशन के फायदे या नुकसान देख लें, तो रिसीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द डिस्कशन व्हिच मेक्स कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो अब अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और आप सिर्फ पढ़ाई जा रहे हैं और स्टूडेंट से कुछ नहीं पूछ रहे, तो वो कह रहे हैं सर तो पढ़ाई जा रहे हैं, हमसे कौन सा पूछना है, तो हम सुने ना सुने कोई बात नहीं, वर्कर्स भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू नो दैट एवरी नाउ एंड देन देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेंडर, कि जी रिसीवर से पूछ रहे हैं जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो उसमें फिर जो रिसीवर है वो एक तो विल पे अटेंशन एंड विल बी रेडी टू आंसर क्वेश्चंस, क्योंकि उसे पता है कि क्वेश्चंस विल बी थ्रोन एट हिम और हर आफ्टर सम टाइम, तो उससे फिर और उसको ये भी पता चलता है कि वो द रिसीवर विल फील इंपॉर्टेंट एज वेल, जो हमने पहले बात की है, तो वो ज्यादा फोकस्ड होके कम्युनिकेशन सुनता है, जिससे कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इंश्योर्स दैट द मैसेज इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और ये भी क्योंकि जब आप फीडबैक लेंगे, ऑफ कोर्स टू वे कम्युनिकेशन में ही फीडबैक होती है ना, विद अ कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज वन वे कम्युनिकेशन, यू नो दैट, एंड कम्युनिकेशन विद फीडबैक इज टू वे, और उसमें फिर आपको पता चल जाता है whether receiver got the message in the true sense or not, और अगर नहीं तो वो बताएगा ना सर I didn't get it, तो आप कहेंगे okay let me rephrase it, let me explain it again, तो उससे फिर chances ज्यादा यही है कि you will be able to make the receiver understand whatever you are saying। अच्छा, फिर disadvantage की तरफ आ जाए तो not suitable when negative feedback is expected, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत लगेगा और आपको यू हैव टू हैंडल लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द रिसीवर। जैसे अक्सर आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देयर आर लॉट्स ऑफ जर्नलिस्ट हु आर आस्किंग क्वेश्चंस, और वो इतने क्वेश्चन पूछते हैं या काउंटर आर्गुमेंट में बात कर होता है, जिसमें फिर उनको फिर छोड़ना पड़ जाता है कि दैट्स इनफ, वी कांट हैंडल मोर क्वेश्चन, ऐसा होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उठ के चले जाती हैं। यस सर। तो वो फिर ये इसीलिए होता है, वरना वो क्योंकि उसमें टू वे कम्युनिकेशन का की अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं या आंसर देते हैं, तो उसमें हमेशा उनको दे हैव टू लीव द जर्नलिस्ट राइट हियर इवन इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चन, और क्योंकि टाइम बहुत वो कंज्यूम करना पड़ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अदरवाइज अगर आप कहीं कोई स्पीच कर रहे हैं टीवी के ऊपर, तो वो तो वन वे है ना, टीवी के अंदर घुस के तो कोई आंसर नहीं दे सकता, आपने आधे घंटे की कोई बात करनी है, वो कन्वे की, जैसे कोई प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है, वो करके बात खत्म कर देता है, तो नो वेस्टेज ऑफ टाइम इज देयर, लॉट ऑफ टाइम इज नॉट कंज्यूम्ड एट ऑल। अच्छा, फिर और स्पेशली ये क्यों, अच्छा ये तो बात हो गई, फिर इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होती है। फिर हमारे पास आ गया जी चूजिंग द एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड। अब आपको मैंने बताया था कि यू रिक्वायर अ मीडियम टू सेंड अ मैसेज, और मीडियम की जमा होती है मीडिया,
रिमेंबर, जैसे कहते हैं ना स्टेडियम, तो स्टेडियम जो है ना वो सिंगुलर है, उसकी जमा स्टेडिया है। टू योर सरप्राइज, जिस तरह बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम जो है ना वो सिंगुलर है, तो इसी तरह मीडिया मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर। अब पहले हम तो मेथड देख लें कि whenever you are going to choose a media, a medium, what factors you need to consider। एक, speed, कि is urgency required or not। अगर रिक्वायर्ड है तो आप वो मीडियम इस्तेमाल करेंगे विच इज द फास्टेस्ट। और नॉर्मली वो कौन सा होता है, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। यू कैन टॉक फेस टू फेस, इससे जल्दी कोई नहीं होता, या यू कैन यूज अ टेलीफोन और सेल फोन, क्योंकि एज सून एज यू utter a word it will be received by the receiver। वर्बल कम्युनिकेशन से फास्ट कोई नहीं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये, अगर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इज कॉस्ट अ बिग इशू, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि भाई कहाँ पर हम चीप मीडियम जो है वो कौन सा हो सकता है, उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अभी हम आगे बात करते हैं चीपर कौन सा है, फास्टेस्ट कौन सा है, तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा। फिर आपके पास जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर वर्कर से बात करनी है who are in another country, so for that you require an internet facility, you require a cell phone or a computer or a laptop। तो अब now every worker must be given an internet facility and the इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और लैपटॉप वगैरह, तो वो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा अगर आपने हर वर्कर को ये लेकर देना है। और इफ यू हैव 5000 वर्कर्स तो वो महंगा पड़ जाएगा, फिर आपको कोई और मीन इस्तेमाल हो सकता है करना पड़ जाए उस केस में। अच्छा, फिर जैसे कि आप अच्छा बहरहाल इसमें बात करते हैं। फिर नेचर ऑफ मैसेज, कि इज इट अ डिटेल्ड मैसेज और अ टेक्निकल वन। एक तो ये चीज है कि वो मैसेज कितना सेंसिटिव है। अगर वो सेंसिटिव ज्यादा है तो यू माइट लाइक टू टॉक टू द रिसीवर इन पर्सन, कि सिर्फ उस तक ही बात जाए बस, कि टेलीफोन पे या ईमेल हैक हो सकती है। तो आप चाहेंगे कि आप ऐसा मीडियम इस्तेमाल करें जो कि आपकी सीक्रेसी को इंटैक्ट रखे। उसके अलावा मैसेज जितना डिटेल्ड होता है उतना ही आप, अगर आप वर्बल मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट लाइकली टू बी रिटेन्ड बाय द रिसीवर इन हिज और हर मेमोरी। एक लंबा चौड़ा सा मैसेज, जैसे ये मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल ही जाऊंगा, तो आप सारा कुछ स्टोर नहीं कर सकती। लेकिन मैंने आपको ये जो इन राइटिंग नोट्स दे दिए, तो अब आपको पता है कि मैं बाद में इसको आसानी से या साथ साथ इन द क्लास और आफ्टर द क्लास मैं इसको दोबारा देख सकती हूँ। आई कैन री रीड इट। तो डिटेल्ड मैसेज में आपका रिटर्न मैसेज होना जरूरी है, अदरवाइज जो है ना वो सारा मैसेज जो है वो रिटेन नहीं कर पाएगा रिसीवर। फिर लीडरशिप स्टाइल पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उसमें आपको ये देखना है कि वन वे कम्युनिकेशन होगी कि टू वे। तो अगर तो लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक है, जिसमें मैनेजर्स डू नॉट वांट टू गेट फीडबैक फ्रॉम द वर्कर्स, तो फिर आप ऐसा मीडियम इस्तेमाल करेंगे जो वन वे होगा, सिंपल इज दैट। जैसे कि पुटिंग अप अ नोटिस ऑन अ नोटिस बोर्ड। अब नोटिस बोर्ड एक वन वे कम्युनिकेशन है ना, क्योंकि उसमें वर्कर सिर्फ पढ़ सकते हैं, जवाब थोड़ी दे सकते हैं। क्या वो नोटिस बोर्ड पे लिख सकते हैं सर आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कांट डू इट? ऑफ कोर्स नॉट। तो नोटिस बोर्ड एक वन वे कम्युनिकेशन है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोक्रेटिक। और अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करने वाले मैनेजर्स हैं तो दे कैन कॉल अ मीटिंग वेयर वर्कर्स कैन सिट राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और वहां पर फिर टू वे कम्युनिकेशन चल सकती है। अच्छा, फिर इस तरह रिसीवर सिंगल और मैनी, ये भी डिपेंड करता है कि रिसीवर एक है तो फिर तो शायद वन टू वन टॉक पॉसिबल है। अगर ज्यादा है तो आपको लगता है कि यू कैन नॉट एड्रेस टू ऑल रिसीवर्स इन द सेम मैनर, तो आप बेहतर है कि वो मीडियम इस्तेमाल करें जिसमें सबको मैसेज चला जाए। जैसे कि ईमेल है, तो अगर एवरी सिंगल वर्कर हैज एन अकाउंट या उनका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंपनी का, तो अ मैसेज कैन बी सेंट which can be received by every worker rather than telling each worker in person, because it will take a lot of time। अगर 5000 वर्कर है, हर वर्कर को अलग-अलग तो नहीं बताया जा सकता ऑफ कोर्स। तो फिर रिटर्न रिकॉर्ड रिक्वायर्ड और नॉट, ये भी कि आपको फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करना है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज टू बी इन रिटन फॉर्म, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बाद में रेफर करना पड़ सकता है मैनेजर को, वर्कर को, कि अगर इफ देयर इज सम एम्बिग्युइटी या सम क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट इज देयर,
तो इस तरह अगर वर्कर को वार्निंग देनी है तो फिर भी रिटर्न होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम इफ वर्कर रिपीट्स इट, तो अगर वर्कर को डिसमिस करना है तो दे मस्ट हैव अ सॉलिड प्रूफ और रिटन एविडेंस। इसी तरह फीडबैक और चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो फिर टू वे कम्युनिकेशन वाला मीडियम इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो वन वे मीडियम भी इस्तेमाल, वन वे कम्युनिकेशन वाला मीडियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं जी कम्युनिकेशन मीडिया पे, जो मैंने आपको बताया है। तो उसमें हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है, और फिर हमारे पास उसमें विजुअल कम्युनिकेशन भी मौजूद है, राइट। अच्छा, अब हम अगर पहले चले जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि फिर हम क्या बोलते हैं कि व्हेन मैसेज इज सेंट ओरली, रिमेंबर, बिकॉज वर्बल है ना, व्हेन यू सेंड एन ओरल मैसेज, ठीक है, थ्रू वर्ड स्पोकन, व्हेन अ मैसेज इज सेंट थ्रू वर्ड स्पोकन, तो हम उसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोन है, मीटिंग है, यू नो दैट। और ये दिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, और इन केस ऑफ एन अर्जेंट मैसेज ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एज वेल, तो ये इफेक्टिव भी हो सकता है, जिसमें रिसीवर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव फीडबैक। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और आप नहीं चाहते कि ये मिसकम्युनिकेट हो, तो आप ये वाला मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, यस, क्योंकि वर्बल में you can use your body as well, you can use your hands by having an eye contact as well, you can make the communication more effective। आप अपनी जो आपकी पिच ऑफ वॉइस है उसको आप लोअर और अप करके you can tell other people what is the important part in the message you are sending or you are conveying। तो उससे आप ज्यादा you can make the other party more interested, और उसको you can make it more effective as well। Okay, fourth one is message can be rephrased if receiver does not understand the message, yes, because I told you earlier that in a verbal message two-way communication is possible। So if message is not understood by the receiver, so it can be rephrased as well, so it can be made more effective। So now disadvantages, तो उसमें हमारे पास पहला है to permanent record to be used in future, yes, I told you earlier, especially if I talk about a contract of employment, a warning to an employee, or let's say an order sent by the customer to the business, because if the order is not in a written form, so there can be some miscommunication. Maybe if 10 products were ordered earlier and the business let's say sent lower number of products, so there could be a problem। So if it is in written form, so obviously the business can refer to it, the production manager can refer to it, and can produce the desired number of products and can be delivered to the customer at the right time। So this is possible। तो permanent record आपको चाहिए होता है कि let's say अब customer कहता है जी मैंने तो ये चीजें नहीं मंगवाई थी, तो आप कहेंगे yes, this is a written order sent by you, so we just followed it। तो उसमें फिर वही कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस नहीं होते, और उसमें ये पता चल जाता है who is at fault। फिर नॉट सुटेबल फॉर डिटेल्ड एंड टेक्निकल मैसेजेस, यस, आई टोल्ड यू अर्लियर के मेमोरी में रिटेन एक सर्टेन लेवल तक ही इंफॉर्मेशन हो सकती है। इफ इट इज टू लॉन्ग यू नीड टू यूज रिटन कम्युनिकेशन रादर देन वर्बल। फिर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, यस, इफ टू मच फीडबैक इज एक्सपेक्टेड, तो अगर बहुत ज्यादा लोग हैं और आपको लगता है कि देयर बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें तो फिर आपको अपनी बात मुकम्मल करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे लेट्स से I am delivering a lesson and I have 40 minutes. So let's say start my lesson and students start asking questions. Sir, please explain it again. Please rephrase it. I didn't get it. So in that way, in 40 minutes, I won't be able to deliver the lesson I planned earlier. तो वो प्रॉब्लम मुझे आ जाएगा इस केस के अंदर। तो फीडबैक अगर ज्यादा चाहिए तो तब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, फिर cannot assure that everybody has understood the message, राइट। तो क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो अनलेस एंड अनटिल कैन नॉट अश्योर दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द मैसेज। क्यों? क्योंकि ये कब होता है, ये है कि इफ यू आर इन अ मीटिंग, यू आर इन अ लार्ज गैदरिंग
and you are addressing to them. So can you ask every single person in the meeting whether you have understood or not? Let's say there are 5,000 or 1,000 people sitting there. Of course not. So you'll answer a few of the people's questions and then you will call off the meeting. तो अब ये प्रॉब्लम और आ रही है, आप सबको नहीं है कि सबने सुना कि नहीं सुना, लेकिन लेट्स से आप हैंड आउट देते हैं टू एवरी पर्सन सिटिंग देयर, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हैंड आउट, यू मेक इट श्योर कि वो हैंड आउट हर बंदे को पहुंच जाए. तो अब कोई आपकी बात नहीं भी सुन रहा तो वो हैंड आउट ही देख रहा है, तो उससे आपको अश्योरिटी, ये अश्योरेंस मिल जाती है, या श्योरिटी मिल जाती है कि भाई वो उसको मैसेज मिल गया. फिर रिटन कम्युनिकेशन आ जाता है, उसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स रिटन. यू सेंड द मैसेज थ्रू वर्ड्स रिटन इन राइटिंग, जिसमें हमारे पास लेटर्स, ईमेल्स, नोटिसेस वगैरह आ जाते हैं. और उसमें एडवांटेज क्या कि सूटेबल फॉर डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस, मैंने आपको बता दिया है, ताकि अगर किसी बंदे ने दोबारा पढ़ना है, उसको नहीं समझ आई, तो वह आराम से अपने आइडल टाइम में उसको पढ़ सकता है. और कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं ना, तो रिटन मैसेज को वो आराम से खुद पढ़कर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं. फिर रिटन एविडेंस कैन बी रेफर्ड टू अगेन. फिर इलेक्ट्रॉनिक रिटन कम्युनिकेशन इज फास्ट. यस, अगर रिटन कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू इंटरनेट है, उसमें वैसे तो वर्ड्स आप टाइप करते हैं, लेकिन हम इसको रिटन कम्युनिकेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं. तो वो फास्ट होती है. आपको पता है कि आपने भेजा और वो अगले को पहुंच गया विद इन सेकेंड्स, चाहे वो ईमेल हो, आजकल तो व्हाट्सएप भी यूज होता है फॉर ऑफिशियल मैसेजेस, उसमें भी आपने टाइप किया तो विद इन सेकेंड वो दूसरे को मिल जाता है. तो इस तरह मैसेजेस जल्दी पहुंच जाते हैं. अच्छा, फिर कैन बी सेंड टू मेनी पीपल एट अ टाइम. यस, आपने एक ही टाइम पर ईमेल के थ्रू जो है वो बहुत से लोगों को भेज दिया. या आपको पता होगा कि आपने एक ही ईमेल लिखी और उसमें एड्रेस टाइप कर दिए ऑफ मेनी पीपल, वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, एंड ऑल पीपल विल गेट द ईमेल एट द सेम टाइम. तो उससे आपका टाइम भी बच गया और आपको बार बार मैसेज सेंड नहीं करना पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा. अच्छा, जैसे ना अक्सर होता है कि लेट्स से कि योर फ्रेंड वांट्स टू कम टू योर हाउस, तो ये होता है ना कि वो कहता है यार अपना एड्रेस तो बताओ, तो आप बताती हो, तो वो आपकी दोस्त कह रही है कि मुझे आवाज नहीं आ रही सही, तो फिर आप क्या करोगी उसके जवाब में, बताओगी आवाज नहीं आ रही तो आपका एड्रेस जरा मुझे भेज दो, तो क्या करोगी आप, कैसे भेजोगी? थ्रू टेक्स्ट मैसेज. वेरी गुड, यस, एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि अगर आपको ये डाउट है कि मैं बोलूंगी तो हो सकता है वो मैसेज अनक्लियर हो और वो गलत एड्रेस समझ ले, तो आप टाइप करोगी. दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, बिकॉज नाउ इट गिव्स यू श्योरिटी के वो जब टिक हो जाएगा और ग्रीन भी हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा उसको ये मैसेज पहुंच गया है, लिखा हुआ पहुंच गया, और वो बार बार उसको रेफर भी कर सकता है, रिफर बैक करेगा या करेगी, तो वो आराम से एड्रेस को फाइंड आउट कर लेगा. ये